Dear students, from the exercise 2.2 we have discussed some basic terms. Divisibility rules. We have already discussed about the divisibility rules of 2. How we have to check a number is divisible by 2 or not. 3, 6, 9, 5 and 10. हम 2 के बारे में, 3 के बारे में, 5 के बारे में, 10 के बारे में और 9 के बारे में. 2, 3, 6, 5, 9 and 10. We have already discussed about these 6 divisibility rules. Today we will discuss about the divisibility by 4. If a number is divisible by 4 or not, how we have to check a number is divisible by 4 or not. For example, I write 24. All are know about this कि 24 is divisible by 4. जो 24 है वो 4 की टेबल में आता है. If I write 6224, you know this number is divisible by 4 or not? Yes, this number is divisible by 4. How we have to tell after seeing the number? कि किसी भी नंबर को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि दिस बिग नंबर इज डिविजिबल बाय 4. फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल क्या कहता है बेटा? इफ लास्ट 2 डिजिट वंस एंड टेंस, you have to see only the last 2 places ones and tens place. सिर्फ आपको 2 डिजिट्स देखने हैं. इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर द मल्टीपल ऑफ 4 डिविजिबल बाय 4, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4. देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4. This number is divisible by 4 or not? What we have to do? We have to check the last 2 digit, 96. If 96 is a multiple of 4, if 96 is divisible by 4, then the whole number is divisible by 4. Check it. 96 को 4 से डिवाइड करो. 4 2 जा 8. 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, what will come? 1. नेक्स्ट डिजिट उतारा 6. 4 4 जा 16. रिमाइंडर बिकम्स 0. तो इट मीन्स yes, this number is divisible by 4. Yes, this number is also divisible by 4. This number is divisible by 4. Check the last 2 places. क्या 4 की टेबल में 27 आता है? 4 is a multiple of 27. 27 is a multiple of 4. सॉरी 27 is a multiple of 4. क्या 27 4 की टेबल में आता है? नहीं आता है. सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4. सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 4, वी हैव टू चेक ओनली द लास्ट 2 places, only the last 2 digits. If last 2 digits are the multiple of 4, if the last 2 digits are divisible by 4, then the whole number is divisible by 4. Understand? Next है divisibility by 8. Divisibility by 4 and divisibility by 8, they both are having the relation. इन दोनों का बेटा रिलेशन है. What is the relation? यहाँ पे हमें क्या करना था? We have to check the last 2 digits. If the last 2 digits are divisible by 4, then the whole number is divisible by 4. But in the divisibility by 8, what we have to do? We have to check the last 3 digits. यहाँ पे हमें क्या करना था? Last 2 digit. We have to check the last 2 digit. If the last 2 digits are the multiple of 4, if the last 2 digits are divisible by 4, then the whole number is divisible by 4. And this 97396, 97,396. This number is divisible by 8 or not? What we have to check? Last 3 digit
को हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि लास्ट जो 3 डिजिट्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 8 हैं या नहीं है। इट मीन्स 396, लास्ट 3 डिजिट में यही है 396। 396 अगर 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स 97,396 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो 8 की टेबल रीड करो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40. 40 is more than 39, so on which place we go? 8 4 जा 32. 39 में से 32 सबट्रैक्ट करो, 7 रिमेन। नेक्स्ट डिजिट उतारो 6, 8 9 जा 72, 4 is remainder, so it means this number is not divisible by 8. ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। वी हैव टू चेक दिस नंबर। इस नंबर को चेक करते हैं हम। 6224 किसको चेक करेंगे हम? 224 को ओनली। किससे? 8 से। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 इज मोर, 8 2 जा 16। 22 में से 16 सबट्रैक्ट किया, वट इज लेफ्ट? 6। नेक्स्ट डिजिट 4, 8 3 जा 8 8 64 है बेटा, 8 8 जा 64, रिमाइंडर इज 0. इट मीन्स yes, this number is divisible by 8. So divisibility by 4 का रूल क्या कहता है कि कितना भी बड़ा नंबर है आपका, 1000 में है, लाख में है, करोड़ में है, अरब में है, मिलियंस में है, you have to take only the last 2 digits. आप सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट्स लोगे, उनको 4 से डिवाइड करके चेक करोगे। अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो यस, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4. अगर आपका रिमाइंडर बिकम्स एनी नंबर 1 2 3, रिमाइंडर बच जाता है, सो इन दैट कंडीशन नो, दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4. 4 से डिवाइड तभी होगा जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो वो कंप्लीट नंबर, इट मीन्स आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 8 का रूल में क्या कहता है? यू हैव टू चेक ओनली द लास्ट 3 डिजिट. इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से डिवाइड हो जाते हैं, इट मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8. नेक्स्ट रूल इज बेटा डिविजिबिलिटी बाय 11. डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या कहता है? रूल क्या कहता है? इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द ओड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द इवन प्लेसेस difference is 0 or the multiple of 11, then the number is divisible by 11. it क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर के इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस उनका डिफरेंस निकालते हैं, इवन प्लेसेस लिखे उनका सम निकाला, ओड प्लेसेस लिखे उनका सम निकाला, और फिर उनका जो सम आया उसका अगर हम डिफरेंस करते हैं एंड दैट डिफरेंस बिकम्स 0 और द मल्टीपल ऑफ 11, या 0 आता है या मल्टीपल ऑफ 11 आता है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. टेक एन एग्जाम्पल. 5,63,321. We want to check that number is divisible by 11 or not. So what we have to do, first of all we have to write that number without putting the commas. हम commas नहीं लगाएंगे. If we put the commas then we will confuse. तो हम क्या हो जाएंगे? Confuse हो जाएंगे. Now we will write the places. हमें 1 10 100 places नहीं लिखने. यहाँ पे places एक different way में है. 1 2 3 4 5 6. These are the places. अब ये जो 6 places हैं, for example ये इनकी सीट नंबर है. ओरिजिनल में ये नंबर ये है, ये सीट नंबर है कि जो 1 नंबर है वो 1 पे ही बैठा है, 2 नंबर 2 पे है, 3 नंबर 3 पे है, 4 नंबर पे अगेन 3 है, कोई अनदर 3, 5th नंबर पे 6 है, 6 नंबर पे 5 है. नाउ ओड प्लेसेस या इवन प्लेसेस किन्हीं को भी सर्कल कर दो. 1
3 5 7 नहीं है, सो 1 प्लेस पे कौन है 1, 3 प्लेस पे 3, 5th प्लेस पे 5 नंबर सीट पे 6, तो इन सीट्स नंबर पे ये नंबर सिटिंग है. सो व्हाट वी हैव टू डू, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ द नंबर ऑफ द ऑड प्लेसेस, कि जो ओड नंबर प्लेस पे जो नंबर है वी हैव टू डू द सम ऑफ दोज नंबर. ओड प्लेस 1 पे कौन है 1, प्लस नेक्स्ट ओड नंबर कौन है 3 पे भी कौन है 3, नेक्स्ट ओड नंबर क्या है 5 पे कौन है 6, नेक्स्ट ओड नंबर इज नो 1 3 6, एक नंबर छोड़ के हमने लिखा है 1 3 एंड 6. सम किया इनका 6 + 3 9, 9 और 1 10. सम ऑफ इवन प्लेसेस, अब जो इवन प्लेसेस पे नंबर है उनको हम सम करेंगे, 2 प्लेस पे कौन है 2 ही है, 2 के बाद 4 प्लेस पे कौन है 3 प्लस 6 प्लेस पे कौन है 5, क्योंकि ये प्लेसेस कौन है ओड प्लेसेस है. 2 ओड प्लेस है, 4 ओड प्लेस है और 6 ओड प्लेस है. सो 2 के नीचे कौन है 2, 4 के नीचे कौन है 3, 6 के नीचे कौन है 5. सो जो ये नंबर है हमने इनका क्या किया सम 5 3 2 5 3 2, 2 + 3 5 + 5 what will come 10. Both numbers sum is same. Now we have to find the difference. Difference क्या है 10 subtract from 10 what will come 0. Difference is 0. If the difference is 0, मैंने क्या बोला था कि sum of the even places and the sum of the odd places का सम करने के बाद जो डिफरेंस आता है, इफ द डिफरेंस इज 0 और द मल्टीपल ऑफ 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. अब डिफरेंस क्या है हमारा ये 0, इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11. चेक इट. 5,63,321 दैट इज द नंबर. 11 से डिवाइड करना है, 11 5 ज़ा 55, सबट्रैक्ट किया 56 में से 55 सबट्रैक्ट किया 1. नेक्स्ट डिजिट क्या है 3, 11 1 जा 11, 11 सबट्रैक्ट फ्रॉम 13 व्हाट विल कम 2. नेक्स्ट प्लेस अगेन 3 है, 11 2 जा 22. अब 23 में से 22 सबट्रैक्ट किया 1. नेक्स्ट प्लेस क्या है 2, 11 1 जा 11 1, नेक्स्ट प्लेस 1, 11 1 जा 11 सबट्रैक्ट किया व्हाट विल कम रिमेन्स 0. रिमाइंडर इज 0. इट मीन्स हमने क्या चेक किया कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट. यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम व्हेन यू डू द 4 5 सम्स देन यू हैव टेक द टाइम, अदरवाइज यू हैव टू डू इन द माइंड में आप कर सकते हो कि हमें एक नंबर छोड़ के नंबर को लिखा 1 + 3 4, 4 + 6 10, यहाँ पे 10 आया. नेक्स्ट का सम करते हैं अब 2 2 + 3 5 5 + 5 10, दोनों 10 आ गए तो 10 में से 10 सबट्रैक्ट किया इट मीन्स 0. इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11. टेक द मोर एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड. 8,43,206. First work what we have to do, we have to write the places 1 2 3 4 5 6. For example, one more number is also there 7. 1 3 5 7. ओड प्लेसेस वाले नंबर्स को हमने क्या किया सर्कल कर दिया. सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ओड प्लेसेस. ओड प्लेस 1 पे कौन है 6, 1 पे कौन है 6 प्लस 3 पे कौन है
2 प्लस 5 पे कौन है 4 प्लस 7 पे कौन है 1, ऐड किया सभी को, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, 12 और 1 13, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 13. Now we have to do the sum of even places. Sum of even places. जो even place पे numbers हैं, even place it means 2. 2 पे कौन है 0 प्लस 4 पे 3 प्लस 6 पे 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 0 11. सो डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे, डिफरेंस इज 13 माइनस 11 2. डिफरेंस इज नॉट 0 एंड नॉट द मल्टीपल ऑफ 11. जो हमारा डिफरेंस आया ना तो वो 0 है और ना ही 11 की टेबल वाला नंबर है. इट मीन्स 1 करोड़ 18,43,206 is not divisible by 11 because the difference is 2. It is not the multiple of 11 or 0, so the number is not divisible by 11. So today we discuss about the divisibility rule of the 4, 8 and 11. 4 के रूल के लिए हमने क्या किया था, we have to check the last 2 digits. If the last 2 digits are divisible by 4 then the whole number is divisible by 4. Divisibility by 8 में क्या था, if the last 3 digits are divisible by 8 then the whole number is divisible by 8. और divisibility by 11 में क्या था, you have to make the different. उनको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इवन प्लेसेस में और ऑड प्लेसेस में. इवन प्लेसेस का सम अलग से डिफरेंट करेंगे और ऑड प्लेसेस का सम अलग से करेंगे और फिर हम क्या निकालेंगे उसका डिफरेंस. जो सम किया है उनको क्या करेंगे हम बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सबट्रैक्ट कर देंगे. इफ द डिफरेंस इज 0 और द मल्टीपल ऑफ 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11. ओके.